Hello everyone. Today in this video we will start to discussing the GIT and liver previous year questions. So first we'll go with the liver. In liver we have 5 questions only: acute chronic viral hepatitis, alcoholic liver disease, hemochromatosis and Wilson's, and HCC. One more we have gallbladder calculi. So first we'll start with acute chronic and viral hepatitis. So first of all we'll go with the hepatitis. Alcoholic liver disease, we have only 15% of patients who consume alcohol suffer with alcoholic liver disease, which develop ALD. Intake of 60 to 80 ml of alcohol per day for 10 years can lead to ALD. It is common cause of liver cirrhosis in Western countries. Gross specimen is soft yellow and greasy appearance due to fat. Microscopy shows steatosis, hepatitis and cirrhosis. Steatosis, hepatitis and cirrhosis. Stages of cirrhosis: stage 1. Stage 1 we have steatosis or fatty chain. Earliest stage in alcoholic liver disease, reversible होता है. Types होता है microvesicular steatosis and macrovesicular steatosis. Microvesicular steatosis, small lipid droplets in hepatocytes, nucleus in the center. Macrovesicular steatosis, large lipid droplets in the hepatocytes, nucleus is pushed to the periphery. So this was about alcoholic liver disease. Causes are microvesicular lesions and macrovesicular steatosis. So microvesicular steatosis, early ALD. Macrovesicular steatosis, late ALD. Microvesicular steatosis, fatty liver of pregnancy, Reye syndrome. Macrovesicular steatosis, hemochromatosis, obesity, and protein energy malnutrition, chronic hepatitis and NASH. Strain used for steatosis is Olredo and Sudan Black Bee. Now we'll come to the hepatitis proper. It is the stage 2 of alcoholic liver disease, just after the steatosis and before the cirrhosis. So hepatitis is basically the inflammation of the liver parenchyma. There's neutrophilic infiltration and Mallory hyaline bodies or dent bodies are seen. And there's chicken wire fibrosis, Mallory hyaline or Mallory dent bodies, pinkish or dense eosinophilic inclusions inside the hepatocytes. Pinkish or dense eosinophilic inclusions inside the hepatocytes. Composition is intermediate filaments like CK8, cytokeratin 8 and 18. Disorders in which they are seen are New Indian Watch. N stands for Indian stands for Indian childhood cirrhosis. W stands for Wilson's tumor. A stands for alpha-1 antitrypsin deficiency. T stands for, what does T stands for? Alpha-1 antitrypsin. T stands for tumor, that is hepatocellular carcinoma. C stands for cirrhosis or primary biliary cholangitis, or H stands for focal nodular hyperplasia, and N stands for NASH. So what is this stage is called hepatic stage. Hepatitis stage, inflammation of liver parenchyma, neutrophilic infiltration, Mallory hyaline or dent bodies, chicken wire fibrosis, Mallory hyaline or dent bodies, pinkish or dense eosinophilic inclusions inside the hepatocytes. Composition is intermediate filaments like CK8 and 18. Disorders in which they are seen is New Indian Watch, NASH, Indian childhood cirrhosis, and then childhood cirrhosis, फिर Wilson's disease, फिर ए से टी से क्या हो गया, टी से हो गया ट्यूमर्स, और सी से फिर क्या हो गया सिरोसिस, और एच से फिर क्या हो गया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और एच से एक और एच से हो गया फोकल नोडल हाइपरप्लेसिया. सो कंडीशंस इन विच मैलेरी हाइपरप्लेसिया इज नॉट सीन आर हीमोक्रोमाटोसिस एंड सेकेंडरी बिलियरी हाइपरप्लेसिया. इन दोनों में नहीं दिखता. सो क्या क्या हो गया, पहला तो हो गया inflammation of the liver parenchyma, neutrophilic infiltration, Mallory hyaline bodies or dent bodies, chicken wire fibrosis. Okay, so Mallory hyaline bodies के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, dense eosinophilic condensation inclusion bodies inside the hepatocytes. Inside the hepatocytes का composition क्या होता है Mallory hyaline में, cytokeratin 8 and 18. Disorders in which they are seen as New Indian Watch in general. So
इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सेकेंड स्टेज होगी स्टेटोसिस के बाद हेपेटाइटिस आता है प्रॉपर। सो हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस प्रॉपर स्टेज 2 में आ रहा है। एक्चुअली अल्कोहल लिवर डिजीज़ में हेपेटाइटिस स्टेज 2 है और मैलरी हाइलैंड बॉडी उसका मेन फीचर है। न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन है मेन चीज़। इसके अलावा है लीवर में इन्फ्लेमेशन, लीवर पैरेन्काइमा का। और लास्टली बट नॉट द लिस्ट चिकन वायर फाइब्रोसिस है। चिकन वायर फाइब्रोसिस में हो गया पेरीसाइनोसोइडल फाइब्रोसिस। पेरीसाइनल फाइब्रोसिस में क्या दिखता है? माइक्रोस्कोपी ऑफ ओलिगोडेंड्रोक्लाइकोमा शोज फ्राइड एग अपीयरेंस, चिकन वायर ब्लड वेसल्स ड्यू टू एनास्टमोसिंग वास्कुलर चैनल्स। सिरोसिस स्टेज में क्या होता है? रीड सिरोसिस पढ़ गया ना फिर आगे, सिरोसिस विल स्टडी अगेन, नो इश्यूज। सो चिकन वायर फाइब्रोसिस में क्या होता है कि पेरीसाइनोसोइडल, तो साइनोसॉइड होता है और हिपैटोसाइट्स होता है, तो पेरीसाइनोसोइडल फाइब्रोसिस होता है। माइक्रोस्कोपी ऑफ ओलिगोडेंड्रोक्लाइकोमा शोज फ्राइड एग अपीयरेंस, चिकन वायर ब्लड वेसल्स ड्यू टू एनास्टमोसिंग वास्कुलर चैनल्स। सो चिकन वायर ब्लड वेसल्स ड्यू टू एनास्टमोसिंग वास्कुलर चैनल्स। मैसिव स्ट्राइगोस्टेन सिरोसिस स्टेज में क्या होता है? अपीयर्स एज माइक्रोनोडुलर सिरोसिस व्हिच लेटर एडवांसेस टू मैक्रोनोडुलर सिरोसिस। Lennox cirrhosis, when the liver gets converted into a fibrous scar, then it's called Lennox cirrhosis. Chicken wire fibrosis, perisinusoidal fibrosis, microscopy of oligodendroglioma shows fried egg. Okay, so chicken wire fibrosis, perisinusoidal fibrosis, massive striatum stain देते हैं ताकि फाइब्रोसिस का पता लगे। सो चिकन वायर फाइब्रोसिस, चिकन वायर ब्लड वेसल्स अलग दिखता है, वो दिखता है ओलिगोडेंड्रोक्लाइकोमा के माइक्रोस्कोपी में, जो कि फ्राइड एग अपीयरेंस चिकन वायर ब्लड वेसल्स दिखा रहा है। ओलिगोडेंड्रोक्लाइकोमा में दिखता है चिकन वायर ब्लड वेसल्स। चिकन वायर फाइब्रोसिस दिखता है मैलरी हाइलैंड बॉडीज़ के साथ में हेपेटाइटिस में। इसमें क्या होता है? पेरीसाइनोसोइडल फाइब्रोसिस दिखता है। और फिर आता है लास्टली बट नॉट सिरोसिस। सिरोसिस स्टेज लास्ट स्टेज है, सो लिख देंगे डेफिनेशन में ही। इट इज़ अ कंडीशन इज मार्क्ड बाय डिफ्यूज remodeling of liver into parenchymal nodules surrounded by fibrous band. So condition is marked by diffuse remodeling of liver into parenchymal nodules surrounded by fibrous band. End stage liver disease है। characteristics क्या क्या है? disruption of entire lobular architecture of liver हो गया, regenerating parenchymal nodules और फाइब्रोसिस होता है। तो ग्रॉस टाइप में क्या होगा? माइक्रोनोडुलर सिरोसिस लेस देन 3 mm, फिर हो गया मैक्रोनोडुलर सिरोसिस मोर देन 3 mm। अब आते हैं पैथोजेनेसिस में। नॉर्मल लिवर टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन आर प्रेजेंट इन पेरीपोर्टल सेंट्रल लोबुलर एरिया एंड टाइप 4 कोलाजन इज प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ दिस। सो पेरीपोर्टल एंड सेंट्रल लोबुलर एरिया। पेरीपोर्टल हो गया जोन 1 जो कि पोर्टल ट्रायड के अगल बगल होता है, और सेंट्रल लोबुलर एरिया हो गया जो कि सेंट्रल वेन के पास होता है। सो पेरीपोर्टल एंड सेंट्रल लोबुलर एरिया में हो गया टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन प्रेजेंट, और टाइप 4 कोलाजन हो गया स्पेस ऑफ डिस्क में। सो टाइप 4 कोलाजन हो गया स्पेस ऑफ डिस्क में, ठीक है। एंड स्टेज लिवर डिजीज हो गया। इट इज रैपिडली कंडीशन मार्क्ड बाय डिफ्यूज रीमॉडलिंग ऑफ लिवर इनटू पैरेन्काइमल नोड्यूल्स सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड। कंडीशन इज मार्क्ड बाय डिफ्यूज रीमॉडलिंग ऑफ लिवर इनटू पैरेन्काइमल नोड्यूल्स सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड, ठीक है। Condition marked by diffuse remodeling of liver into parenchymal nodules surrounded by fibrous bands. Condition marked by diffuse remodeling of liver into parenchymal nodules surrounded by fibrous band. Condition marked by diffuse remodeling of liver into parenchymal nodules surrounded by fibrous bands. So condition marked by diffuse remodeling of liver into parenchymal nodules surrounded by fibrous band. Parenchymal nodules से बनता है surrounded by fibrous band. So fibrous bands बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कौन सा? चिकन वायर फाइब्रोसिस। और parenchymal nodules मिलेगा जो कि nodules होता है मैक्रोनोडुलर और माइक्रोनोडुलर। और डिफ्यूज रीमॉडलिंग ऑफ लिवर, सो कंटिन्यूस रीमॉडलिंग ऑफ लिवर होते रहता है सिरोसिस। सो सिरोसिस हो गया एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटायर लोबुलर आर्किटेक्चर ऑफ लिवर, उसी के बारे में कह रहे हैं, बर्बाद हो गया। फिर रीजनरेटिंग पैरेन्काइमल नोड्यूल्स, डिफ्यूज रीमॉडलिंग ऑफ लिवर हो रहा है, रीजनरेटिंग पैरेन्काइमल नोड्यूल्स हो रहा है जो कि नोड्यूल माइक्रो और मैक्रो सकते हैं, और फाइब्रोसिस जो कि चिकन वायर हम लोग पढ़ा था हेपेटाइटिस में। यहाँ पे सिर्फ फाइब्रोसिस लिखना, चिकन वायर मत लिखना। चिकन वायर ब्लड वेसल्स मिलते हैं कहाँ पे? फ्राइड एग अपीयरेंस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइटोमा, ठीक है।
फ्राइड एग अपीयरेंस ऑफ ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा। ओके, नाउ माइक्रोनोडुलर मैक्रोनोडुलर पैथोजेनेसिस में टाइप 1 टाइप 3 मिलता है सेंट्रल लोब्यूलर और पेरीपोर्टल में, और सिरोटिक लिवर में मिलता है ईटोसेल्स जो कि स्टेलेट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिक्रीट करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन इन द स्पेस ऑफ डिस्क लीडिंग टू लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशन ऑफ द साइनोसॉइड्स, कैपिलराइजेशन ऑफ द साइनोसॉइड्स। माइक्रोनोडुलर सिरोसिस एंड मैक्रोनोडुलर सिरोसिस। माइक्रोनोडुलर सिरोसिस हो गया लेस देन 3 mm, मैक्रोनोडुलर सिरोसिस हो गया मोर देन 3 mm। अर्ली अल्कोहलिक लिवर डिजीज, लेट स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन्स डिजीज। हीमोक्रोमेटोसिस में माइक्रोनोडुलर होता है और विल्सन्स डिजीज में क्या होता है मैक्रोनोडुलर सिरोसिस। अल्फा 1 एंटीऑक्सीडेंट में भी डिफिशिएंसी में भी मैक्रोनोडुलर होता है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है माइक्रोनोडुलर सिरोसिस। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। न्यूरोलॉजिक में हो गया हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एस्टेरिक्सिस। और इंटीक्यूमेट्री में हो गया क्या जॉन्डिस, स्पाइडर एंजाइना, एंजियोमा, पाल्मर इरिथेमा, परप्यूरा, पिटिकी और कैपिट मेड्यूसी। फिर आ गए हेमेटोलॉजिक में एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपेनिया एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स और स्प्लीनोमेगली। लिवर प्रोडक्शन में मेनी कोएगुलेशन फैक्टर्स, तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, इंटीग्यूमेंट्री में जॉन्डिस और स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर इरिथेमा, परप्यूरा, पिटिकी, कैपिट मेडिसी। न्यूरोलॉजिक में हो गया हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एस्टेरिक्सिस। जीआई में क्या हो गया एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, चेंज इन बाउल हैबिट्स, डल एब्डोमिनल पेन, फीटोर हेपेटिकस, इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वायरसेस, गैस्ट्राइटिस, हेमेटोमेसिस और हेमोरॉइडल वायरसेस। रिप्रोडक्टिव में क्या हो गया एमेनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, गायनेकोमास्टिया, इंपोर्टेंस। मेटाबॉलिक में क्या हो गया हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया। सो हेमेटोलॉजिक में हो गया एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपेनिया, कोएगुलेशन यूज फॉर फाइब्रोसिस एंड मायोसिस। सो दैट वाज इट अबाउट हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। चेंजेस इन हिस्टोलॉजी में क्या आएगा माइक्रोनोडुलर सिरोसिस में आएगा। आई थिंक स्टेटोसिस और हेपेटाइटिस आएगा। माइक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस एंड माइक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस आएगा इसका माइक्रोस्कोपी में। आई एम प्रीटी श्योर फैटी चेंज है ना, और ये रिवर्सिबल होता है स्टेटोसिस, ठीक है। बट हेपेटाइटिस आई थिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है रिवर्सिबल, और सिरोसिस तो इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये तो अभी पढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। That's pretty much it for hepatitis, I think. Even if it's not, I think they can manage by focused repetitions. Hepatitis, cirrhosis और ये alcoholic liver disease तीनों को मिला के भी लिख सकते हैं कैसे। मेन क्लिनिकल फीचर्स पे तुम एक पेज पूरा खींच सकते हो। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, न्यूरोपैथी, एस्टेरिसिस, और फिर आगे क्या लिवर में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्पाइडर एंजियोमा, कैपिट मेड्यूसी वगैरह, परप्यूरा, पाल्मर इरिथेमा। फिर आगे गैस्ट्रिक में एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया। जीआई में तो नोजिया, वोमिटिंग, और क्या हो गया जीआई डिस्टर्बेंसेस, गैस्ट्राइटिस। फिर आगे रिप्रोडक्टिव में एमेनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, गायनेकोमास्टिया। फिर आगे क्या मेटाबॉलिक में हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया। कार्डियोवास्कुलर में क्या हो गया फ्लूइड रिटेंशन, पेरिफेरल एडिमा और असाइटिस, पेरिफेरल एडिमा और असाइटिस। फिर क्या आ गया हेमेटोलॉजिक में एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपेनिया, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, स्प्लीनोमेगली, और क्या हो गया इंटीग्यूमेंट्री में जॉन्डिस, स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर इरिथेमा, परप्यूरा, पिटिकी और कैपिट मेड्यूसी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन्स डिजीज। लेट्स गो। ओके, हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन्स डिजीज। Hemochromatosis, also called as Brown's diabetes, it is an excessive iron deposition in the body. हालांकि जो कलर होता है वो आई थिंक मेलेनिन के कारण होता है ना, rather than hemocytin एक्चुअली। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इसका कारण क्या होता है सिरोसिस ऑफ लिवर ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस हीमोक्रोमेटोसिस है।
Okay, it's also called as Brown's diabetes. It's 100% of the body. Autosomal recessive disorder, male is equal to female. Most common cause cirrhosis due to medical disorder. Types में हो गया hereditary and acquired. Hereditary में क्या हो गया mutation of HFE gene on 6p chromosome. इसके अलावा HAMP gene mutation भी हो सकता है और उसके अलावा HJV gene mutation. सो 3 जीन होता है बट उसमें से मेन इंपॉर्टेंट है HP जीन म्यूटेशन ऑन 6p. ये मेन है बट इसके अलावा भी HP जीन के HFE जीन के अलावा भी 2 जगह और है जो कि है HAMP और HJV. ओके ना, HFE में 2 हो गया, 6p क्रोमोसोम पे HFE होता है बट इसके अलावा HAMP जीन और HJV जीन भी होता है. HAMP जीन म्यूटेशन और HJV जीन म्यूटेशन भी होता है. सो जीन फॉर HLA इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6p. Gene for HLA is located on the short arm of chromosome 6p. So autosomal recessive disorder है, male is equal to female होता है. Most common cause is cirrhosis due to metabolic disorder होता है, also called as Brown's diabetes. Excessive iron deposition in the body, autosomal recessive disorders, male is equal to female. Most common cause cirrhosis due to metabolic disorder. Types से क्या होगा, hereditary and acquired. Hereditary में क्या होगा, mutation of HFE gene on 6p chromosome, HAMP gene mutation और HJV gene mutation. म्यूटेशन ऑफ HFE जीन ऑन 6p क्रोमोसोम, HAMP जीन म्यूटेशन और HJV जीन म्यूटेशन. HJV जीन म्यूटेशन में क्या हो गया, जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस. अक्वायर्ड में क्या हो गया, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बांटू सिरोसिस. बांटू एन अफ्रीकन ट्राइब, रिस्क ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस ड्यू टू कुकिंग इन आयरन यूटेंसिल्स. बांटू एन अफ्रीकन ट्राइब, रिस्क ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस ड्यू टू कुकिंग इन आयरन यूटेंसिल्स. जीन फॉर HLA is located on the short arm of chromosome 6p. Gene for HLA is located on the short arm of chromosome 6p. पैथोजेनिज्म जो है HFE जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 6p, डिक्रीज लेवल ऑफ हेप्सिडिन, इंक्रीज आयरन ओवरलोड, हीमोक्रोमेटोसिस. ओके, HFE जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 6p, डिक्रीज लेवल ऑफ हेप्सिडिन, इंक्रीज आयरन ओवरलोड, हीमोक्रोमेटोसिस. सो HFE जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 6p, फिर डिक्रीज लेवल ऑफ हेप्सिडिन, इंक्रीज आयरन ओवरलोड और फिर क्या हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस. हेप्सिडिन क्या होगा, नेगेटिव आयरन रेगुलेटर हो गया. क्लिनिकल फीचर्स में हो गया ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डायबिटीज मेलिटस और माइक्रोनोडुलर सिरोसिस. सो माइक्रोनोडुलर सिरोसिस में एग्जांपल में आ गया हीमोक्रोमेटोसिस. मैक्रोनोडुलर में आ गया विल्सन्स ट्यूमर, विल्सन डिजीज. सो ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉन्ज डायबिटीज और इट इज सीन इन पेयर्स इज इक्वल टू फीमेल, ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, ओके. इसमें होता क्या है, देयर इज अ ट्रायड ऑफ माइक्रोवेस्कुलर स्क्लेरोसिस और लेग्स में क्या हो गया, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. ओके, और लिवर में क्या हो गया, लिवर में हो गया पिगमेंटेशन, डायबिटीज मिलता, सॉरी, पैनक्रियाज में. ओके, सो पैनक्रियाज को इफेक्ट कर रहा है. ओके ओके ओके. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस हो गया ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस है. कौन सा सिरोसिस है, ये नहीं नोड्यूल कौन सा है, माइक्रोवेसिकुलर, नहीं माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस. सॉरी, माइक्रोवेसिकुलर सिरोसिस क्या था वो, माइक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस में ऐसा कुछ नहीं है. स्टेटोसिस में एग्जांपल्स नहीं है, सिरोसिस में एग्जांपल है. सिरोसिस के माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस और माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस में दोनों में एग्जांपल्स हैं. हीमोक्रोमेटोसिस उधर और विल्सन डिजीज इधर है. ओके, नेक्स्ट. सो हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड हो गया. हेरिडिटरी में हो गया म्यूटेशन ऑफ HFE जीन 6p और HAMP जीन म्यूटेशन, HJV जीन म्यूटेशन, जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस. एक्वायर्ड में हो गया रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बांटू सिरोसिस. जीन फॉर HLA इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6p. जीन फॉर HLA इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6p. ओके, पैथोजेंस पे आता है HFE जीन म्यूटेशन क्रोमोसोम 6p, डिक्रीज लेवल ऑफ हेप्सिडिन, इंक्रीज आयरन ओवरलोड, हीमोक्रोमेटोसिस. हेप्सिडिन हो गया नेगेटिव आयरन रेगुलेटर. अब आते हैं ट्रायड, क्या क्या है, ब्रोन्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ड्यू टू मेलानिन प्लस हीमोसिडेरिन ग्रेटर देन हीमोसिडेरिन, फिर डायबिटीज मेलिटस और माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस. फिर क्या होगा, जॉइंट्स में स्यूडा गाउट और टेस्टिस ऑर्गेनाइड्स में क्या होगा, एट्रोफी. हार्ट में क्या हो गया, बोथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. आयरन ग्लैंड्स आल्सो बी अफेक्टेड. डायग्नोसिस में क्या हो गया, सीरम प्रोफाइल में सीरम आयरन बढ़ता है, सीरम फेरेटिन भी बढ़ता है, सीरम TIBC घटता है, सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन घटता है और नहीं बढ़ता है, सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन बढ़ता है. लिवर बायोप्सी में क्या होगा, गोल्डन येलो और ब्राउन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट्स. लिवर बायोप्सी में क्या होगा, गोल्डन येलो और ब्राउन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट्स. लिवर बायोप्सी में क्या होगा, गोल्डन येलो और ब्राउन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट्स. स्पेशल स्टेन क्या हो गया, प्रुशियन ब्लू या फिर पर्ल स्टेन. स्पेशल स्टेन में क्या हो गया, प्रुशियन ब्लू और पर्ल स्टेन. लिवर बायोप्सी में क्या हो गया, गोल्डन येलो और
ब्राउन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट्स। सीरम फेरेटिन सैचुरेशन क्या होता है, बढ़ता है। सीरम TIBC डिक्रीज होता है। सीरम आयरन इंक्रीज, सीरम फेरेटिन इंक्रीज, सीरम TIBC डिक्रीज, सीरम ट्रांसफरेंस सैचुरेशन बढ़ता है। लिवर बायोप्सी में क्या होता है, गोल्डन येलो और ब्राउन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट्स। लिवर बायोप्सी में क्या होता है, गोल्डन येलो और ब्राउन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट्स। स्पेशल स्टेन होता है प्रूशियन ब्लू और पर्ल स्टेन। स्पेशल स्टेन होता है प्रूशियन ब्लू और पर्ल स्टेन। Hemosiderin Prussian blue stain appears as blue granular pigment. Hemosiderin Prussian blue stain appears as blue granular pigment. ट्रीटमेंट हो गया ड्रग ऑफ चॉइस आयरन चिलेटर्स लाइक डेस्फेरोक्सामाइन आयरन चिलेटर्स लाइक डेस्फेरोक्सामाइन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो गया फ्लेबोटमी। ओके, स्पेशल स्टेन हो गया प्रूशियन ब्लू और पर्ल स्टेन। लिवर बायोप्सी हो गया गोल्डन येलो और ब्राउन पिगमेंट हेपेटोसाइट्स। स्पेशल स्टेन हो गया प्रूशियन ब्लू और पर्ल स्टेन। आयरन प्रोफाइल में क्योंकि सीरम आयरन बढ़ता है, सीरम फेरेटिन बढ़ता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी घटता है, बट सीरम आयरन बढ़ता है, सीरम फेरेटिन बढ़ता है, TIBC घटता है, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट रहता है एक और ट्रांसफरेंस सैचुरेशन, वो भी बढ़ता है। ठीक है, नो ट्रायड ऑफ ब्रॉन्ज डायबिटीज़, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ड्यू टू मेलानिन ग्रेटर देन हीमोसिडेरिन और डायबिटीज मेलिटस और माइक्रोनोडुलर सिरोसिस। ठीक है, दो टाइप का सिरोसिस होता है, माइक्रोनोडुलर मैक्रोनोडुलर। तो माइक्रोनोडुलर सिरोसिस हो गया और अक्यूट स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। ठीक है, और अर्ली ALD और लेटर ALD में हो गया मैक्रो, और फैटी लिवर में हो गया, प्रेगनेंसी में हो गया माइक्रो। अरे नहीं, ये तो स्टेटोसिस है, नोडुलर में था ना, सिरोसिस में, नोडुलर में, हाँ हेमोक्रोमैटोसिस में, और फिर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में इधर हो गया, और दैट्स इट। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या क्या हो गया, एनोरेक्सिया, खाने का मन नहीं, डिस्पेप्सिया, HCl नहीं बन रहा, नॉसिया, वॉमिटिंग, बाउल हैबिट्स में चेंज, डल एब्डोमिनल पेन, फीटर हेपेटिकस, इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वायरसेस, गैस्ट्राइटिस एंड हेमाटेमेसिस, हेमोरॉइडल वायरसेस। ओके, रिप्रोडक्टिव में क्या हो गया, एमेनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड गायनेकोमास्टिया मेल, और इम्पोर्टेंस। नैश हो गया, रे सिंड्रोम। ओके, फिर विल्सन्स डिजीज में क्या आ गया, कॉपर, एक्सेसिव कॉपर डिपॉजिट इन द बॉडी, ऑल्सो नोन एज हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन। पैथोजेनेसिस हो गया ATP7G म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13q। विल्सन्स डिजीज में क्या हो गया, ATP7B म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13q, ATP7B म्यूटेशन विद ATP7B म्यूटेशन ऑन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13q। एक्सेसिव कॉपर डिपोजिशन इन द बॉडी ऑल्सो नोन एज हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन। पैथोजेनेसिस में क्या हो गया, ATP7B जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13q, ATP7B जीन म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम 13q। लेडिन में पेड कॉपर कॉर्पोरेशन इनटू सेलुलर प्लाज्म हो गया कॉपर बाइंडिंग कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, इंक्रीज कॉपर इन द बॉडी, विल्सन डिजीज। अदर मैकेनिज्म इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन इन द बाइल। क्लिनिकल फीचर्स में हो गया ट्रायड ऑफ ऑक्यूलर और ब्रेन और सिरोसिस। ऑक्यूलर में क्या हो गया, काइसर फ्लेशर रिंग इन डिसेमिनेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, सनफ्लावर कैटरैक्ट। ब्रेन में हो गया प्यूटामिन एंड बेसल गैंग्लिया अफेक्टेड, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन। फीचर्स ऑफ साइकोसिस और पार्किंसंस लाइक डिजीज। और लिवर हो गया सिरोसिस, डायग्नोसिस लिवर बायोप्सी, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, स्टेटोसिस, मैग्नेटिक एंटीबॉडीज कैन बी प्रेजेंट। स्पेशल स्टेन हो गया रोडामाइन और रुबेनिक एसिड इसमें। विल्सन यानी कि बुगाटी यानी कि रोबिन, ठीक है, रुबेनिक एसिड। कॉपर रिलेटेड प्रोटीन स्टेनिंग, ऑर्किन स्टेन कैन ऑल्सो स्टेन इलास्टिन फाइबर्स एच एज हेमोग्लोबिन एस एंटीजन। सीरम कॉपर लेवल्स हो गया इंक्रीज्ड, सीरम कॉपर लेवल्स हो गया क्या इंक्रीज्ड। सीरम सेलुलर प्लाज्मिन लेवल्स हो गया डिक्रीज्ड एज एक्सेसिव कॉपर बाइंडिंग लीड्स टू अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलुलर प्लाज्मिन इन ब्लड। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो गया इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो गया इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर। ट्रीटमेंट क्या हो गया, कॉपर शेलेटर जो कि हो गया पेनिसिलामाइन। ट्रायड ऑफ ऑक्यूलर, ब्रेन एंड लिवर। सो ऑक्यूलर में हो गया काइसर फ्लेशर रिंग इन डिसेमिनेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, सनफ्लावर कैटरैक्ट वगैरह। ब्रेन में हो गया प्यूटामिन एंड बेसल गैंग्लिया अफेक्टेड, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस, फीचर्स ऑफ साइकोसिस, पार्किंसन लाइक डिजीज। लिवर में है सिरोसिस।
डायग्नोसिस में हो गया लिवर बायोप्सी, acute and chronic inflammation, steatosis, Mallory Highland bodies are can be present. Special stain हो गया rhodamine and rubenic acid, copper associated protein staining, organ stain, okay, can also stain elastin fibers, HPS antigen. Serum copper levels हो गया बढ़ेगा, serum cellular plasmin level हो गया decreased, as excessive copper leads to exhaustion of cellular plasmin in blood. Excessive copper binding leads to exhaustion of cellular plasmin in blood. Special stain होगा rhodamine and rubenic acid, copper associated protein staining, organ staining can also stain elastin fibers, hemoglobin S antigens. Serum copper levels हो गया increased, serum cellular plasmin level decreased. Serum copper levels हो गया increased, serum cellular plasmin level हो गया decreased. Serum cellular plasmin level हो गया decreased, as excessive copper binding leads to exhaustion of cellular plasmin in blood. As excessive copper binding leads to exhaustion of cellular plasmin in blood, leading to impaired copper incorporation into cellular plasm. Cellular plasm क्या हो गया? Copper binding, copper transporting protein, increased copper in body, जिसके होता है Wilson's disease. Other mechanisms हो गया impaired copper excretion in bile, classic clinical features हो गया triad, ocular, और क्या हो गया ब्रेन और लिवर में हो गया सिरोसिस, ब्रेन में पिटर्न बेसल गैंग्लियन अफेक्टेड न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, फीचर्स ऑफ साइकोसिस, पार्किंसन लाइक डिजीज होता है फ्रेम में, ओक्यूलर में हो गया काइसर फ्लेशियर रिंग इन डेसमेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, काइसर फ्लेशियर रिंग, सनफ्लावर कैटरैक्ट हो गया, ब्रेन में क्या हो गया पिटर्न बेसल गैंग्लियन अफेक्टेड न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस, और क्या हो गया फीचर्स ऑफ साइकोसिस, और पार्किंसन लाइक डिजीज होता है लिवर में होता है सिरोसिस. डायग्नोसिस में क्या होता है लिवर बायोप्सी, acute and chronic inflammation, steatosis and Mallory Highland bodies can be present. Special stain क्या हो गया rhodamine and rubenic acid, copper binding, copper associated protein staining, organ stain, can also stain elastin fibers, hemoglobin S antigen, can also stain elastin fibers, hemoglobin S antigen, can also stain elastin fibers, hemoglobin S antigen. फिर क्या होगा सीरम कॉपर लेवल्स इंक्रीज्ड, सीरम सेलुलर प्लाज्मा लेवल डिक्रीज्ड, एज excessive copper binding leads to exhaustion of cellular plasma in blood. More specific test increased urinary excretion of copper. More specific test increased urinary excretion of copper. ट्रीटमेंट क्या हो गया कॉपर शेलेटर, पेनिसिलामाइन. ट्रायड ऑफ ऑक्यूलर, ब्रेन एंड लिवर में सिरोसिस, ब्रेन में क्या है पिटामिन, basal ganglia are affected, neuropsychiatric manifestations, features of psychosis, Parkinson's like disease, features of psychosis, Parkinson's like disease, putamen and basal ganglia are affected, neuropsychiatric manifestations, features of psychosis, Parkinson's like disease. Ocular में हो गया Kaiser Fleischer ring in Descemet's membrane of cornea, Kaiser Fleischer ring Descemet's membrane of cornea, Kaiser Fleischer ring and Descemet's membrane of cornea, leading to impaired copper incorporation into cellular plasma. कॉपर इंकॉर्पोरेशन इनटू सेलुलर प्लाज्मा को इम्पेयर कर देता है. तो सेलुलर प्लाज्मा क्या है जो कॉपर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इंक्रीज कॉपर इन बॉडी, तो सेलुलर प्लाज्मा से साथ कॉपर को जुड़ने नहीं दे रहा तो कॉपर बढ़ जा रहा है बॉडी में, तो विल्सन डिजीज हो रहा है. अदर मैकेनिज्म इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन द बाइल, अदर मैकेनिज्म क्या होगा इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन द बाइल. ट्रायड ऑफ ऑक्यूलर, ब्रेन एंड लिवर. ऑक्यूलर में क्या होगा काइसर फ्लेशर रिंग इन डेसमेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, सनफ्लावर कैटरैक्ट. फिर ब्रेन में क्या होगा पिटामिन बेसल गैंग्लिया अफेक्टेड, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, फीचर्स ऑफ साइकोसिस में क्या आ गया पार्किंसन लाइक डिजीज, और लिवर में क्या होगा सिरोसिस, लिवर में क्या होगा सिरोसिस. ओके दैट्स इट. और सिरोसिस हो गया लिवर में. डायग्नोसिस में क्या हो गया लिवर बायोप्सी में acute and chronic inflammation, steatosis, Mallory Highland bodies can be present. स्पेशल स्टेन में क्या हो गया रोडामाइन और रुबेनिक एसिड, कॉपर एसोसिएटेड प्रोटीन स्टेनिंग, ऑर्किन स्टेन कैन आल्सो स्टेन इलास्टिन फाइबर्स एंड हीमोग्लोबिन एस एंटीजन. सीरम कॉपर लेवल हो गया इंक्रीज, सीरम सेरोमन लेवल हो गया डिक्रीज, सेलुलर प्लाज्मा लेवल कम हो गया, तभी तो कॉपर वो जुड़ नहीं पा रहा तो बढ़ जा रहा है कॉपर, तो कॉपर बढ़ रहा है सेलुलर प्लाज्मा घट रहा है, इससे एक्सेप्शन सेलुलर एक्सेसिव कर रहा है तो सेलुलर प्लाज्मा कम हो गया. मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट क्या है कॉपर बढ़ रहा है ना सीरम में, तो वो यूनिट की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगा. सो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इज इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर.
ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट हो गया कॉपर शेलेटर पेनिसिलामाइन। उधर क्या था ट्रीटमेंट, उधर था ट्रीटमेंट में हीमोसिडेंट में, ट्रीटमेंट में क्या आता है उधर, आई थिंक ऑयल रेड और सुडान ब्लैक भी आता है उसमें, यानी हीमोक्रोमेटोसिस में आता है, या प्रूशियन ब्लू। ऑयल रेड और सुडान ब्लैक भी आता है हेपेटाइटिस में। हीमोक्रोमेटोसिस में आता है प्रूशियन ब्लू, पर्ल स्टिंग, प्रूशियन ब्लू और पर्ल स्टिंग, ठीक है। और ट्रीटमेंट में क्या आता है, आई थिंक आयरन चिलेटर्स, जैसे कि डेस्फेरोक्सामाइन। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है फ्लेबोटमी, डेस्फेरोक्सामाइन। और क्या होता है, फ्लेबोटमी। डेस्फेरोक्सामाइन और फ्लेबोटमी, ठीक है। फिर आगे आते इधर क्या है इसका, ऑक्यूलर, ब्रेन और लिवर में। डायग्नोसिस क्या था, लिवर बायोप्सी, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, स्टेटोसिस और मैरी हेलन बॉडी स्कैन प्रेजेंट। स्पेशल स्टेन होगा रोडामाइन एंड रोबेनिक एसिड, और कॉपर प्रोटीन स्टेनिंग हो गया, ऑर्किंग स्टेनिंग कैन ऑल्सो स्टेन elastin fibers, hemoglobin as antigen. Serum copper levels increase, serum ceruloplasmin levels decrease, leads to exhaustion of ceruloplasmin in blood. मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो गया इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर। ट्रीटमेंट में क्या हो गया, कॉपर शेलेटर जो कि हो गया पेनिसिलामाइन, सो डेस्फ्लोरोक्सामाइन और पेनिसिलामाइन दोनों। पेनिसिलामाइन आता है इधर विल्म्स में आता है। ओके, नेक्स्ट पेनिसिलामाइन हो गया फॉर विल्म्स ट्यूमर, ओके। विल्सन्स डिजीज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। रोडामाइन और रोबेनिक एसिड स्पेशल स्टेन हो गया, कॉपर रिलेटेड प्रोटीन स्टेनिंग हो गया, ऑर्किन स्टेन, और इलास्टिक कैन ऑल्सो स्टेन इलास्टिन फाइबर्स, हीमोग्लोबिन एस एंटीजन, सीरम कॉपर लेवल्स हो गया इंक्रीज, सीरम सेरुलोप्लाज्म लेवल घटता है, एज एक्सेसिव कॉपर बाइंडिंग कैन लीड्स टू एग्जॉस्शन ऑफ सेरुलोप्लाज्म इन ब्लड, as excessive copper binding leads to exhaustion of ceruloplasmin in blood. Most specific test हो गया increased urinary excretion of urine copper, and treatment हो गया copper chelator penicillamine. Okay, that's it. I think we should move to the HCC. Okay, first we'll describe this one. So HFE gene होता है, so chromosome 6p पे, और ATP7B gene होता है, वो होता है chromosome I think 13 पे। okay, दोनों म्यूटेशन होता है, इधर एक्सेसिव आयरन डिपोजिट होता है, एक्सेसिव कॉपर accumulates in the bile, excessive copper depletion, excessive copper in the urine, etc. क्लिनिकल पे जो है स्क्रीन डायबिटीज मेलिटस और माइक्रोवेव सिरोसिस मेन है। इसके अलावा आर्थराइटिस और हाइपोगोनेडिज्म, एट्रोफी ऑफ द ओवरी एंड टेस्टिस, और ये हो गया सेक्स ऑर्गन्स में। और क्या है, हाइपोगोनेडिज्म के अलावा या जॉइंट्स में होता है स्यूडोगोट, हार्ट में होता है डायलेटेड एफरेस्टेड कार्डियोमायोपैथी। सो आर्थराइटिस हो सकता है स्यूडोगोट, और हार्ट में हो सकता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। इधर हो गया कीसर फ्लैशरिंग, काइसर फ्लेशियरिंग और सिरोसिस एंड ब्रेन मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इधर हो गया इन्वेस्टिगेशंस में सीरम इंक्रीज्ड आयरन, इंक्रीज्ड फेरिटिन, इंक्रीज्ड आई थिंक ट्रांसफर इन सैचुरेशन लेवल्स बट डिक्रीज TIBC। और इधर कॉपर लेवल बढ़ा हुआ था बट, और कॉपर लेवल इन द ब्लड, कॉपर लेवल इन द यूरिन, बट आई थिंक सेरुलोप्लाज्म लेवल्स कम होंगे।
इंक्रीज कॉपर। H&E में क्या हो गया, हीमोसिडोन डिपोजिशन, प्रूशियन ब्लू स्टेन। इधर क्या हो गया H&E में, स्टेटोसिस, हेपेटाइटिस एंड रोडामिन ऑर्किन स्टेन, या ऑरिकिन स्टेन। ओके, ऑर्किन स्टेन हो गया इधर, और उधर क्या था, प्रूशियन ब्लू, ओके, रोडामिन रोवेनिक एसिड हो गया स्पेशल स्टेन, और कॉपर रिलेटेड प्रोटीन स्टेनिंग हो गया तो उसमें हो गया ऑर्किन स्टेन। ओके, और सीरम आयरन, सीरम कॉपर बढ़ेगा, सीरम सेलुलर घटेगा, और मोस्टली हो गया इंक्रीज ऑफ कॉपर। ठीक है, हो गया कॉपर शेलेटर पेंसिलामाइन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं HCC। HCC में चलते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में क्या होता है, ओके, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल्स होता है, एज होता है 60 to 70 ईयर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या हो गया, अल्कोहल, नैश, हीमोक्रोमेटोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, एफ्लाटॉक्सिन, टायरोसिनेमिया, एफ्लाटॉक्सिन, टायरोसिनेमिया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल्स, एज इज 60 to 70 ईयर्स। रिस्क फैक्टर्स हो गए नैश, अल्कोहल, हीमोक्रोमेटोसिस, chronic hepatitis and chronic hepatitis B and chronic hepatitis C, aflatoxin, tyrosinemia, gross appearance, हो गया chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, aflatoxin, tyrosinemia, gross appearance हो गया multiple nodules और multiple foci। H&E में क्या हो गया, hepatocytes arranged in cord, sheet and trabeculae। ओके, मैलरी हाइलैंड बॉडीज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या था, न्यू अल्कोहलिक वॉच, सॉरी न्यू इंडियन वॉच, सो इनसे था नैश, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस। ओके, फिर आ गया अल्कोहल। ठीक है, अच्छा ये इसका है, तो हाँ, तो मैं कह रहा था नॉन अल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस, और न्यू, फिर क्या हो गया, इंडियन से इंडियन चाइल्डहुड लिवर डिजीज, चाइल्डहुड, फिर क्या हो गया वॉच। सो डब्ल्यू से हो गया विल्सन, ए से हो गया अल्फा एडिशन डिफिशिएंसी, टी से हो गया क्या, टी से हो गया यार, टी से क्या था, एक सेकेंड, टी से क्या था, टी से था समथिंग विद टी वाज आई थिंक ट्यूमर, दैट्स HCC। सो अपने को पता है अभी मैलरी हाइलैंड बॉडी मिलेगा, टी में लिखा हुआ है। इसके अलावा सी और एच है, एच से आई थिंक हीमोक्रोमेटोसिस है, और सी से आई थिंक क्या है, सी से है या सिरोसिस ही होगा, और क्या होगा, pretty sure that's what cirrhosis हो गया, नैश, न्यू इंडियन वॉच। सी से हो गया सिरोसिस, टी से हो गया ट्यूमर जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सी से हो गया सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, और एच से हो गया फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया, एफ से क्या हो गया फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। फिर क्या हो गया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल्स, एज क्या होगा 60 to 70 ईयर्स। रिस्क फैक्टर क्या हो गया अल्कोहल, नैश, हीमोक्रोमेटोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, एफ्लाटॉक्सिन, टायरोसिनेमिया। ग्रॉस फैक्टर अपीयरेंस क्या हो गया मल्टीपल नोडुल्स और मल्टीपल फोकाई। H&E में क्या हो गया हेपेटोसाइट्स अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, शीट्स एंड ट्रैबेकुले, कॉर्ड्स, शीट्स एंड ट्रैबेकुले। मैलरी हाइलैंड बॉडीज प्लस वास्कुलर इन्वेजन प्रेजेंट होता है क्योंकि कैंसर है ऑब्वियसली। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स में क्या है अल्फा फीटोप्रोटीन, हेपार1, न्यूरोटेंसिन और ग्लाइपिकन-3। AFP, alpha fetoprotein is also raised in yolk sac, endodermal sinus tumor, Schiller dual bodies are present. Okay, Schiller dual bodies are present. I think that's also in a testicular cancer, which one I forgot. Okay, fibrolamellar variant of HCC, young girl population में दिखता है. Oh yeah.
ट्राइकोप्रोटीन दिखता है नो इंक्रीज AFP लेवल्स, हाँ यहाँ AFP नहीं बढ़ता, बट नॉर्मल वाले में अल्फा बीटा प्रोटीन से योग सैक और एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में बढ़ता है, ठीक है। AFP नहीं बढ़ता इधर बच्चे वाले में। सो फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट ऑफ, यहाँ पे इम्यूनो हिस्टोकेमिकल मार्कर है एक्चुअली, हेपार1, न्यूरोटेंसिन, ग्लाइपिकन 3, तो अल्फा फीटो प्रोटीन हो गया, हेपार1 हो गया, न्यूरोटेंसिन हो गया और ग्लाइपिकन 3 हो गया। मैलेटरी हायर बॉडीज प्रेजेंट है और वास्कुलर डिवीजन प्रेजेंट है। AFP इज रेज्ड इन योग सैक और एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। शिलेडोल बॉडीज आर प्रेजेंट। यहाँ बात है फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट ऑफ HCC में यंगर पॉपुलेशन में दिखता है, नो इंक्रीज AFP लेवल्स, नो हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस होता है, मेल और फीमेल होता है। HNE में होता है फाइब्रोसेप्टर सेपरेटिंग द नोडुल्स। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या दिखता है, न्यूरोटेंसिन नोडुल्स, ओके। अब आते हैं एंजियोसार्कोमा में, इन रिस्क फैक्टर्स क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक और थ्रोट रस्ट, ओके, थ्रोट रस्ट। नॉट श्योर व्हाट दैट्स अबाउट, बट इसका तो मेरे को समझ आ गया क्या कहना चाह रहा है। हेपेटोफिलर कार्सिनोमा ये मेल और फीमेल ज़्यादा होता है, काइंड ऑफ लाइक विल्सन्स 80p 70 जीन म्यूटेशन और होता है। सो ट्रायड होता है, इम्पेयर्ड कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू सेलुलर प्लाज्मा, सेलुलर प्लाज्मा कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इंक्रीज्ड कॉपर इन बॉडी, विल्सन्स डिजीज, इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन इन बाइल, rhodamine and rubenic acid, working stain, can also stain elastin fibers, HBsAg, cellular plasmin in blood, serum cellular plasmin level, more specific level, increased urinary excretion of copper. ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉपर चिलेटर पेनिसिलामाइन। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मेल ग्रेटर देन फीमेल, और एज क्या हो गया 60 to 70 ईयर्स। रिस्क फैक्टर्स हो गया अल्कोहल, नैश, हेमोक्रोमेटोसिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, एफ्लाटॉक्सिन, टायरोसिनेमिया, ग्रोसोपेनिया, मल्टीपल नोड्यूल्स और मल्टीपल फोकाई। HNE में क्या हो गया, हेपेटोसाइट सेरीजन कॉर्ड शीट एंड ट्रैबेकुले। HNE में क्या हो गया, हेपेटोसाइट सेरीजन कॉर्ड शीट एंड ट्रैबेकुले। मैलेटरी हाई बॉडीज प्रेजेंट होता है, वास्कुलराइजेशन प्रेजेंट होता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स क्या है, अल्फा बीटा प्रोटीन, हेपार1 और क्या हो गया, न्यूरोटेंसिन और क्या हो गया, ग्लाइपिकन 3, फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट ऑफ HCC, यंगर पॉपुलेशन में होता है, नो इंक्रीज AFP लेवल्स, नो हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस, मेल इज इक्वल टू फीमेल होता है इधर। फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट यंगर वेरिएंट हो गया, नो AFP इंक्रीज और नो हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस यहाँ पे, मेल इज और फीमेल होता है। HNE में फाइब्रोसेप्टर सेपरेटिंग नोडुल्स होता है। इधर मैलेटरी हाइलैंड बॉडी था, वास्कुलर इमेजिंग प्रेजेंट था, और हिस्ट्री ऑफ HNE में क्या था, हेपेटोसाइट कॉर्ड शीट्स एंड ट्रैबेकुले। यहाँ पे क्या है, फाइब्रोसेप्टर सेपरेटिंग नोडुल्स, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में न्यूरोटेंसिन मॉड्यूल्स, ओके। हेपेटोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स और क्या हो गया, AFP अल्फा बीटा प्रोटीन रेज इन योग सैक, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, शिवल ड्यूअल बॉडीज आर प्रेजेंट, ओके, शिवल ड्यूअल बॉडीज आर प्रेजेंट। अब आते हैं बाइल पे कुछ ऐसा, गॉल ब्लैडर कैलकुलाई बोल रहा है। गॉल ब्लैडर कैलकुलाई कहाँ है, आई डोंट थिंक इट्स देयर, गॉल ब्लैडर कैलकुलाई, ओके ओके। प्राइमरी बिलियरी एंड सेकेंडरी बिलियरी तो कर ही सकते हैं। सो प्राइमरी बिलियरी फीमेल में ज़्यादा होता है, सेकेंडरी दोनों में होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रा हेपेटिक, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेपेटिक, AMA और ANA पॉजिटिव होता है, इधर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट बाई स्टोन्स एंड कार्सिनोमा। सो अगर बाइल डक्ट के स्टोन होगा भी, सो दैट वुड बी सेकेंडरी, ओके। बाइल डक्ट बाई स्टोन्स एंड सेकेंडरी, दैट इज सेकेंडरी, जस्ट इन केस ऐसा पूछ रहे थे। जोगरेन सिंड्रोम ये नहीं होता। HNE में क्या होता है, बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन एंड बाइल डक्ट स्टेसिस, ओके। सो बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन एंड बाइल डक्ट स्टेसिस हो सकता है। एफोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, ग्रैनुलर फॉर्मेशन एंड डक्टुलर एट्रोफी, इंट्राहेपेटिक, एक्स्ट्राहेपेटिक, अच्छा। सो दैट्स बेसिकली इट अबाउट हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, विल्सन डिजीज हो गया, और ईटियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी HCC तो हो ही गया। और गॉल ब्लैडर कैलकुलाई में सेकेंडरी बिलियरी हाइपरसिरोसिस मार सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आए। एक बार फिर से होता है HCC। सो मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल से 60 to 80 ईयर्स में होता है, 70 ईयर्स में। रिस्क फैक्टर्स हो गया अल्कोहल, नैश, हेप्सी, हेप्पी, हीमोक्रोमेटोसिस, एफ्लाटॉक्सिन, टायरोसिनेमिया, ग्रॉसोपेनिया हो गया, मल्टीपल नोडुल्स और मल्टीपल फोकाई। HNE में क्या होगा, हेपेटोसाइट रेंजेस, कॉर्ड शीट्स एंड ट्रैबेकुले। HNE में क्या होगा, हेपेटोसाइट रेंजेस, कॉर्ड शीट्स एंड ट्रैबेकुले। मैलेटरी हाइलैंड बॉडीज प्रेजेंट होता है,
वास्कुलर इन्वेजन प्रेजेंट होता है, ह्यूमनिस्ट AFP होता है, और क्या होता है हेपार1 न्यूरोटेंसिन और ग्लाइपिकन 3। हेपार1 न्यूरो अल्फा बीटा प्रोटीन और न्यूरोटेंसिन और ग्लाइपिकन 3। AFP is raised in yolk and endodermal sinus tumor. Shival dual bodies are present. Fibrolamellar variant of HCC, younger population, no increase in AFP levels. No history of hepatitis, excellent prognosis, males or female. HNE में क्या हो गया fibrous septa separating nodules, immunohistochemistry, neurotensin models. That's it. So, done.